Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Um, Today we talk about the data structure. In data structure, we just talk about the linked list. Just we talk about the linked list. Okay, because arrays you have read about. So and the matrix operations like matrix multiplication, addition and all matrices के ऊपर काम करना अभी आपको बाकी है. I will keep it कि you should do it of your own. Okay, do something of your own. Because you have read arrays and matrices already read in your BC and all. Linked list also you must have read about in a BC and all, but I will start afresh, and I'm telling you, if anybody has an issue, just tell me, because there you may have read it in a C. Here it is in C++, so it is a different. It is a little different. It is same, but now syntax will be a little different and all. That's otherwise it will be all same, and we'll be creating some object and classes. Otherwise it will be same what you have read in your C. So जो array हमने आपको पता है आपने पढ़ी हुई है, and this is all practical. Okay, so you should put up your any compiler you like, जिसमें आप comfortable हो, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप साथ साथ काम करेंगे, ठीक है ना. Whatever we do, you practice on that, and you make copies. Ask tons of questions. Don't worry. I will start as if you have never read data structure. I will teach it in that manner. I will be helping you, because if I've taken the job in hand, I will not be messing up with the subject and trying to finish the syllabus. I will try my best to make you understand each concept, do its code, and each line of the code I will explain. But if you do not work on the back, if you're not making copies, you're not practicing it on the computer, then I will not be able to help you. ठीक है ना? Other guys, Ubaid and Asfa Bashir, open up your camera. So when we talk about arrays and why we need linked list, is that an array was a contiguous memory allocation. It was a contiguous memory allocation. That means memory was allocated one, after this is memory allocated second, third block is after this, fourth block is after this, and next block is after this, right? And it has some issues with the arrays. The first issue is of size. Say for example, you created of some size an array, and now you want to create a new but आपको पता नहीं था कि आपने 10 की array की आपको 100 की चाहिए होती. Now अब आपकी 10 की array है but लेकिन 100 की पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है. अब जावा के अंदर डायनेमिक arrays होती हैं, लेकिन वहां पर भी हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है इस चीज की, लेकिन तब भी आपको जो है ये मेमोरी छोड़ के दूसरी मेमोरी एलोकेट करनी है जो कि बड़ी होगी. और मैक्सिमम अगर सी की बात करें तो वहां एक गुंजाइश है ही नहीं. आपने एक साइज एरे का दिया तो उसके बाद आपको उसको आप कुछ नहीं कर सकते. यू आर फिक्स्ड. इट्स स्टैटिक. साइज इज स्टैटिक. वंस गिवन यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट एक्सपैंड इट. दिस इज वन थिंग. सेकंड चीज आपके पास है, फर्ज कीजिए अब आपके पास एनएफ एरे है, बड़ी एरे है, और आपने कुछ एलिमेंट्स इसमें दिए हैं 6, 7, 8 और वगैरह वगैरह से 100 एलिमेंट्स आपके पास है, ठीक है. अब 100 एलिमेंट्स के बीच में आप एक एलिमेंट इन ऑर्डर, ये मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में 100 एलिमेंट्स के बीच में एक एलिमेंट डालना चाहते हैं. अब इसमें ऐसा कोई ये चारा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ करूं, बल्कि मुझे क्या करना है कि ये जो सारे एलिमेंट, जैसे फर्ज की इस इधर मैं एलिमेंट भरना चाहता हूँ, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑन द राइट दे हैव टू बी शिफ्टेड वन एलिमेंट्स. एज ये ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आपका इसमें वॉइस कमिंग. Is it showing me? Yes, sir. It's showing me internet is Yes, sir, but unstable. थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बीच बीच में. दिखा रहा है कि इंटरनेट अनस्टेबल है, कुछ मसला है इसका, बारिश से हो गया ये. वन वर्ल्ड, ओ मेरे को वन वर्ल्ड क्यों कनेक्ट है? व्हाई नॉट द एयरटेल? लेट मी कनेक्ट द एयरटेल वाईफाई. ओके, ये दूसरा वाईफाई था, पता नहीं इसको मत इंटरनेट ही नहीं होगा इसलिए. हाँ, उसको शायद इंटर कनेक्टेड, ठीक है. ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, जैसे कि आप स्टूडेंट्स बैठे हो, 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो बीच में अब एक बंदा आएगा, उसको जगह निकालने के क्या करना पड़ेगा? बाकी सबको इनको बोलना पड़ेगा भाई इधर इधर चलो, इधर इधर चलो. तो वो कॉस्ट है जो शफल आप कर रहे हैं, जो शफल कर रहे हैं आप लेफ्ट लेफ्ट एक एक बंदे को, सारे को करना है ना.
मतलब यहाँ पे आपको करना है और यहाँ से 99 बंदे, तो 99 बंदों को पहले एक एक स्टेप आगे चलाना है एरे के अंदर। लिंक्ड लिस्ट में ये पंगा नहीं है, लिंक्ड लिस्ट में आप कहीं पर भी डाल सकते हो। लिंक्ड लिस्ट में मेमोरी का मसला नहीं है कि मेमोरी रैम के अंदर आपको जहां जब आप करोगे क्रिएट, सो एक ही जगह मेमोरी होनी चाहिए एरे में। यहाँ पे वो नहीं है, एक नोड यहाँ हो सकता है, दूसरा नोड यहाँ हो सकता है, तीसरा नोड यहाँ हो सकता है, चौथा नोड इससे पहले हो सकता है। सिर्फ लिंक्स है कि इसको इसके साथ लिंक है, इसको इसके साथ लिंक है, इसको इसके साथ लिंक है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास अब अगर लिंक्ड लिस्ट मेरे पास है, फर्ज कीजिए मेरा लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, इसको लिंक इसके साथ है, असल में वो इंतजाम यहीं पे रखते हैं, इसको लिंक इसके साथ है एंड सो ऑन, ठीक है ना, इसको लिंक इसके साथ है एंड सो ऑन। अब मुझे यहाँ पे डालना है नोड, मुझे कुछ नहीं करना, ये लिंक इसको साथ अटैच करनी है और इसकी लिंक इसके साथ अटैच करनी है, ये लिंक हटानी है। तो कहीं पर मैं डाल सकता हूँ, मुझे वो शफल करने की जरूरत नहीं है। कैन यू विजुअलाइज दिस थिंग कि मुझे शफल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिंक जो मेरी था, जैसे हमने पकड़ा था हाथ से, इसका हाथ इसके हाथ पर, अब ये वाला जैसे मैंने पकड़ा था एक हाथ से महराजुद्दीन को और दूसरे हाथ से हिना को, अब फैसल नजीर को मुझे डालना है। अब मैं महराजुद्दीन का हाथ छोड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा फैसल नजीर का हाथ, और फैसल नजीर पकड़ेगा किसका हाथ, महराजुद्दीन का, घुस गया ना बीच में, तो मसला ही नहीं कुछ, सिर्फ लिंक हटानी है आपको। सो कुल मिला के जो लिंक्ड लिस्ट है हमारे पास, उसके बहुत फायदे हैं। और एक और फायदा ये है कि जो एरे आपकी है, फर्ज कीजिए आपको एलिमेंट्स पता नहीं कितने चाहिए, आपने 100 की एरे खड़ी कर दी और बाद में पता चला कि आपको 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो बाकी जो 98 है वो फ्री रह गए। लिंक्ड लिस्ट में वो परेशानी नहीं है, जब आपको डेटा चाहिए उसी वक्त नोड खड़ा करो, ठीक है। अगर 2 नोड है तो 2 ही नोड होंगे, जब तीसरा आएगा तब अटैच करेंगे, जब चौथा आएगा अटैच करेंगे, तो जितने होंगे उतने ही करेंगे। एरे में हम फिक्स्ड साइज रख रहे हैं पहले ही 100 का और इस्तेमाल कम कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो कुल मिला के एरेज में बहुत सारी परेशानियां थी, वो लिंक्ड लिस्ट ने सॉल्व कर दी सारी की सारी। अब मसला है कि लिंक्ड लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे इन आवर C++ है ये, ठीक है, इट्स नॉट सी, मुझे पता था ये सी है, ये C++ है, तो कोई मसला नहीं है, C++ में क्लास वगैरह हम करेंगे और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। कॉन्सेप्ट चाहे सी का था या आपको बी सेम है, यहाँ पे वो सेम ही रहेगा। यानी कि पहले मेरे पास एक नोड होगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ नोड, वी कॉल इट टेक्निकली एज अ नोड। नोड के पास 2 चीजें होंगी, एक इसके पास डेटा होगा जो भी आप भरना चाहते हो, चाहे 1 डेटा, 10 डेटा, 15 डेटा, 20 डेटा, इट डजंट मैटर, जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा पार्ट, वो इंटीजर कैरेक्टर जो भी आप रखना चाहते हो, और जितने भी रखना चाहते हो वो रखो, मसला नहीं है। हम सिंपलिसिटी के लिए फिलहाल यहाँ पे एक इंटीजर डेटा रखेंगे बस समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हो, एक डेटा की जगह 50 डेटा आपने रखा, तो जिस तरह आप एक डेटा फिल करोगे उस तरह 50 उसके डेटा, जैसे ये स्टूडेंट है लिंक्ड लिस्ट स्टूडेंट का, तो उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका एनरोलमेंट नंबर, वो सारा आ सकता है। फिलहाल मैं सिंपल दिखा रहा हूं कि मेरे पास एक नोड होगा, उसके पास डेटा पार्ट होगा, डेटा पार्ट में वो सब चीजें हो सकती हैं जितनी भी आपको मर्जी होगी। फिलहाल हम कितना रख रहे हैं, एक, समझाने के लिए, क्योंकि वरना वो प्रोग्राम उसी में चला जाएगा डेटा भरने में, तो कॉन्सेप्ट में नहीं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और दूसरा पार्ट क्या होगा, यहाँ पे ये लिंक होगी, क्या होगी, address to the next node. Exactly, this will be a link, so this will store an address, so ये होगा क्या, so what will be a data type of this, integer, int जो डेटा होगा, no, pointer type. listen, ये जो डेटा यहाँ पर है it can be int, so it is int data, ठीक है, d should be small, int data, variable names has to be small letter, so int data ये इसका है, इसका डेटा टाइप, क्योंकि इसको पकड़ना है एड्रेस जो खुद ये है नोड, ऐसा ही वाला जो दूसरा नोड आएगा, जो ये नोड होगा, जो इस नोड का डेटा टाइप होगा, क्योंकि इसको स्टोर करना है एड्रेस, जैसे ये एड्रेस 100 पे है, 1020 पर है, तो इसमें ये एड्रेस जाएगा 1020। सो एक बात तो ये पॉइंटर होना चाहिए, एक तो ये पॉइंटर होना चाहिए एड्रेस, ठीक है, और दूसरी बात इसका डेटा टाइप वही होना चाहिए जो इस नोड का डेटा टाइप है या इस नोड का डेटा टाइप है। कोई भी नोड आप बनाओगे वो एक ही किस्म का बनाओगे ना, फिर आप नोड उसी डेटा टाइप के, जो नोड का डेटा टाइप होगा, क्योंकि इसको स्टोर करना, अगर मेरे को यहाँ पे स्टोर करना होगा एड्रेस ऑफ इंटीजर, सो इट विल बी इंटीजर पॉइंटर,
अगर मुझे एड्रेस स्टोर करना होगा किसी कैरेक्टर का तो इट विल बी कैरेक्टर पॉइंटर। समझ में आई बात? अगर मुझे एड्रेस करना होगा फ्लोट का, इट विल बी फ्लोट पॉइंटर। बट मुझे एड्रेस करना है स्टोर किसका? नोड का, जो नेक्स्ट नोड होगा। जैसे फर्ज कीजिए आप स्टूडेंट्स जो हो, मेरा ये नोड है, नोड इज माय स्टूडेंट। द फर्स्ट स्टूडेंट इज फॉर एग्जांपल आजान, ओके। और आजान के साथ मैंने एक बॉक्स रखा है जिसमें मैं एड्रेस डालूंगा नेक्स्ट स्टूडेंट, बतूरा है सेकंड स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का एड्रेस डालूंगा। बट मैं किसका एड्रेस डाल रहा हूं? स्टूडेंट का। सो जो पॉइंटर आजान के पास होगा जो लिंक करेगा एड्रेस टू द बतूरा विल बी ऑफ टाइप द डेटा टाइप जिसकी बतूरा बनी है ना? जिसका भी एड्रेस होगा वही एड्रेस स्टोर करना है। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? सो जो डेटा टाइप इस नोड का होगा, पहले ये समझना है, जो डेटा टाइप इस नोड का होगा, ठीक है, उसी का पॉइंटर ये होगा। तो कुल मिला के नोड के अंदर मेरे पास दो चीजें होंगी, एक डेटा पार्ट होगा और लिंक पार्ट, यानी कि जिसमें मैं एड्रेस डालूंगा। वो एड्रेस पार्ट जो होगा वो पॉइंटर होगा, बिकॉज पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ना। एड्रेस कौन स्टोर करता है? पॉइंटर ना। नॉर्मल वेरिएबल में का एड्रेस स्टोर, एड्रेस को उसका स्टोर यूज पॉइंटर है ना। सो जो लिंक पार्ट होगा वो पॉइंटर होगा, और उस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होगा? वही होगा जो नोड होगा, जो नोड का डेटा टाइप। डज इट मेक सेंस? सो इट विल बी ऑफ टाइप नोड, जो नोड अगर मैंने बनाया है उसी का पॉइंटर है। ये बात समझ आ रही है सबको? हाँ या ना बताओ ना यार। यस सर। जी क्योंकि जैसे फर्स्ट क्लास मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी देखनी है ना, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग। अब एरेज में मैट्रिसेस शुरू करूंगा, लेकिन एरेज पता नहीं मुझे आपने पढ़ी भी है नहीं पढ़ी है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, वरना मैं मैट्रिसेस से शुरू करता हूँ, क्योंकि अब उसमें मुझे पता नहीं एरेज का कॉन्सेप्ट है भी नहीं। इसलिए मैं लिंक्ड लिस्ट फ्रेश टॉपिक उठा रहा हूँ, तो उससे मैं पहले से ही पढ़ाऊंगा, स्टार्ट से ही, उसका बिगिनिंग से। इसमें मुझे ये नहीं रहेगा कि आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, सिर्फ आप मुझसे पूछो, ठीक है। अगर आप सारे का सारा भूल गए हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, डोंट वरी, आई डोंट केयर, जस्ट आस्क मी। लेकिन ईच पॉइंट को समझो, इसको प्लग करो। प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चों का खेल है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जब आप मेरे पास पढ़ोगे इंशाल्लाह ताला, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, आपको लगेगा जैसे टिकटॉक तो गेम खेलते हैं ना ऐसा, और इसमें सबसे ज्यादा मजा लगेगा आपको। इट इज नॉट ए खुशिक सब्जेक्ट, इट्स ए वेरी गुड सब्जेक्ट एंड इट इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। इन फैक्ट ओनली कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट आपका टफ नहीं है, कीप दैट इन माइंड। आपको कोई भी सब्जेक्ट है आप कह ही नहीं सकते टफ है, सिर्फ पढ़ने की और अप्रोच की बात होती है बस। इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। सो ये जो फोबिया अक्सर बच्चों को होता है, डेटा स्ट्रक्चर खतरनाक शायद है, वो दिमाग से निकालो। इट्स अ वेरी इजी। मैं कह रहा हूँ जो ज़रब ज़ीरो आप खेलते हो ना, टिक जो खेलते हो ज़रब ज़ीरो गेम, इट इज इजियर देन दैट। कीप दैट थिंग इन माइंड। सो फोबिया को बाहर फेंको और मेरे साथ काम करो। सो अगर मेरे पास यहाँ पे, लेकिन ये C++ है, तो मेरे को क्लास बनाना पड़ेगा। अगर मुझे बनाना होगा इस नोड को, तो मैं क्लास बनाऊंगा एक, उसका नाम रखूंगा नोड, ठीक है। आई हैव अ क्लास नोड, ठीक है। ये क्लास यहाँ पे बंद हो गया, इसको टर्मिनेटर डालता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एज यू नो द सिंटेक्स ऑफ C++, एक क्लास है, क्लास का नाम। अगर C++ भी भूल गए हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ पूछो मुझे और दिमाग रखो। अगर आप C++ भी भूल गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। whatever we will read it from beginning, and inshallah ta'ala we will do it in a much better way, and you should be at the end of the class telling me what it is exactly, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दें, क्वेश्चंस का आंसर करें, मेरे साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है। सो क्लास नोड मेरे पास है। तो क्लास जब हम, क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले उसका क्लास होता है। क्लास इज नथिंग बट अ टेम्पलेट, लेकिन तब तक वो वजूद में नहीं आता, याद रखना चाहिए, ये आपको पता ही होगा, मैं फिर से बताता हूँ। अगर मैंने क्लास में कुछ लिखा, इसमें बहुत सारे डेटा वगैरह है, एरेज है, पता नहीं क्या क्या है, इसका वजूद कहीं पर नहीं है जब तक मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो हम इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप दिस। जैसे मैं इंट वेरिएबल ए करूंगा, इसी तरह के मैं इस नोड का वेरिएबल कोई खड़ा करूंगा, नोड टाइप वेरिएबल, से फॉर एग्जांपल n। नाउ दिस n is called a reference variable which has the address of this object, or I have a new keyword, I say I have a new keyword जिससे ये बनेगा, ठीक है।
और साथ साथ में हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में मदद करेगा। दिस इज डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट, डिफॉल्ट ना जो हमारे पास सिंटेक्स है कि एक क्लास का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो इसको क्रिएट करेगा। कंस्ट्रक्टर आपने पढ़े होंगे C++ में, अगर नहीं पता तो सुने मेरे बात कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, वो एक सिर्फ फंक्शन जैसे आप कहते हैं जो फंक्शन, पता है ना फंक्शन, पता है फैसल नजर रियाज? सी की फंक्शन पता है ना, फंक्शन किसे बोलते हैं? फैसल फंक्शन पता है कि फंक्शन भी नहीं पता? फंक्शन पता है आप लोगों को फंक्शन क्या होती है? यस सर। उसी तरीके से खास फंक्शन होती है एक क्लास के अंदर। ये जो अगर मेरा क्लास है इसका नाम क्या है? नोड। एक फंक्शन होती है मेरे पास जिसको सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास होता है। सो अगर ये नोड है तो मेरे पास नोड ही का एक फंक्शन होगी, ठीक है? ये मेरी वो फंक्शन है नोड, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कॉल्ड? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक, अब हम फंक्शन नहीं बोलते, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होते हैं C++ में हम फंक्शन नहीं बोलते, हम मेथड बोलते हैं, ठीक है? फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? मेथड। फंक्शंस हम बोलते हैं अक्सर सी में, जो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वहां पे हम फंक्शन को मेथड बोलेंगे। तो मेरे पास एक खास किस्म का मेथड है, ठीक है, नोड, और इसका नाम सेम है एज दैट ऑफ क्लास। तो ये कोई और मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? एंड अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द क्रिएशन ऑफ, बोलो कब कंस्ट्रक्ट करते हैं? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखिए ये मेरा क्लास है, फर्ज में कोई क्लास है, इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो डेटा होगा और मेथड्स होंगे, ठीक है? लेकिन अगर इसका नाम ABC है और अगर मैं इसी नाम का कोई मेथड रख रहा हूं ABC, मेरे पास और भी मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले वगैरह वगैरह। पहले मैं क्या क्या काम करूंगा, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑफ टाइप ABC में बनाऊंगा OB इज इक्वल टू न्यू, and I call the constructor ABC because constructor is called at the time of creation of object. ये जो OB है, this is not object, this is a reference variable. Object आपके heap एक memory होती है, it is called as a heap memory. वहां पे आपका ये object बनेगा जिसमें वो सारी चीजें जो आपने बताई हैं वो यहाँ पे होंगी, और इस heap के अंदर कहां पर ये object है उसका एड्रेस इस OB में होता है। That is why this OB is called as a reference variable. ठीक है? Reference variable because it refers to the object. So object is created in heap. This OB actually will be created in stack. Now this is pointing to this. ठीक है? This is pointing to the where this object is in the heap. So object कहाँ बनेगा? In a heap memory. और जो reference variable है वो कहाँ बनेगा? And stack. And how you create a new object using the new keyword in C++. Okay? Java के अंदर भी ऐसे ही होता है। Admit सुहेब मंसूर। समझ आ रही है बात को या नहीं आ रही है? अब अगर आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड, स्पेशल मेथड जिसका सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास होता है। जो भी क्लास है, अगर मेरे पास है क्लास नोड, तो मैं इस नोड का यहां पे एक मेथड बनाऊंगा नोड। ओके, नाउ अगर मेरे पास और भी कोई मेथड है, जैसे यहां पे एक मेथड है कॉल्ड डिस्प्ले, ठीक है? जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, हाउ आई विल से ऑफ टाइप नोड मेक n इक्वल्स टू न्यू। देखिए अगर आपको इंटीजर वेरिएबल, आप कहते हो ऑफ टाइप इंट बनाओ i इज ऑफ टाइप इंट, है ना? इसी तरीके से जो मेरा एक क्लास है उसका नाम है नोड, ये भी डेटा, ये डेटा टाइप है, दिस इज अ डेटा टाइप। चैट में कुछ आ रहा है, लेट मी सी फर्स्ट। यार वो सी का कंसेप्ट हो गया ना जो आप महराज ने बता रहे हो, ये C++ का कंसेप्ट है, ठीक है? वी आर वर्किंग इन C++ राइट नाउ, ठीक है? आप वो भी कर सकते हो बट दैट इज अ सी कंसेप्ट। C++ में जब हम C++ की बात करते हैं, यू शुड टॉक अबाउट क्लासेस because this is an object oriented concept. In object oriented concept में आप structures की बात नहीं करते, आप किसकी बात करते हैं?
आप क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की बात होती है इन द सी, जहां आपके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब बात होती है उसमें हर एक चीज को ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर की बात होती है दैट इज नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ओके, नोड n इज इक्वल टू न्यू। देखिए जैसे आपने इंट आई किया, आई वेरिएबल आई किया ऑफ टाइप इंट, ठीक है, आई किया ऑफ टाइप इंट। इसी तरह जो मेरा डेटा टाइप है, नया डेटा टाइप मेरा मेरे पास है, क्लास है, इसका डेटा टाइप है, कहीं से शोर आ रहा है, इसका जो ये है नोड, इसका नाम क्या है, इस क्लास का नाम नोड है। तो इस नोड का मैं बनाऊंगा n यूजिंग द कीवर्ड न्यू। जब दो नया, अगर मैं कहूंगा खाली नोड n, सो एक पॉइंटर बनेगा, एक रेफरेंस वेरिएबल बनेगा इन स्टैक विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ दिस क्लास, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बना नहीं। वो ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब मैं न्यू कहूंगा, न्यू, ओके, and then call the constructor node. Then I call this constructor. So when is this constructor called? This is called at the time of creation of object. Automatically create call from here. ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले को कॉल करनी है, it won't be called, this display won't be called using this n, using at the time of object, sorry, creating object, but it has to be explicitly called using n. I have to say n dot display, इस डिस्प्ले को कॉल करो, ठीक है। The constructor is called when? At the creation of object. Does it make sense? So how you create an object? You say of that class name, जो भी आपका क्लास होगा, कोई वेरिएबल जो आपकी मर्जी होगी, फिर आप कहोगे न्यू, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। इसमें कोई इशू है? सिंपल है। जब भी आपको क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, यू से ऑफ डेटा टाइप जो आपकी क्लास का नाम है, और एक रेफरेंस वेरिएबल बताओगे जिसमें डालोगे वो एड्रेस उस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि जब आप न्यू नोड करोगे तो हीप के अंदर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब इस n में उसका एड्रेस जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है अब? ठीक है। उबैद, आसिफा, बशीर, ताबिर, बट एंड सुहेब, मंजूर एंड निसा, व्हेयर इज योर कैमरास ऑफ? आसिफा, बशीर, आपको कैमरा ऑफ क्यों है? ताबिर बट, हु इज दिस ताबिर बट? इसका कैमरा क्यों ऑफ आ रहा है? आपको समझ आ रही है इसमें बात, मैं क्या बोल रहा हूं? सो अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, हाउ शुड आई क्रिएट ऑब्जेक्ट, बता मुझे। Class name variable, new operator and reference variable, new operator and then a constructor, simple. So अगर मुझे अब अपना नोड बनाना है, जो मैं नोड बना रहा था, मैंने कहा क्लास नोड। पहले दिन आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें ये है, आपको पता नहीं कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं, वरना बाद में तो पता, बाद में हमें नहीं चलेगा ये ना, ये it will not take any time to us. So क्लास नोड बता रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज माई क्लास नोड एंड आई एंड माई क्लास हियर विद द टर्मिनेटर। एक तो मेरे पास इसमें पहले ही इंट डेटा होगा, ठीक है, और मैं पहले ये सारा पब्लिक में रखूंगा। यू नो इन C++ वी हैव द पब्लिक एरिया, वी हैव द प्राइवेट एरिया, वी हैव द प्रोटेक्टेड एरिया। तो अगर मैं पब्लिक नहीं लिख रहा हूं तो ये सारा का सारा प्राइवेट होगा ऑटोमेटिकली। दैट मींस इट वोंट बी एक्सेस्ड आउटसाइड देन लेटर ऑन, ठीक है। फिलहाल मैं सारा पब्लिक में रख रहा हूं, आप प्राइवेट में भी रख सकते हो, डेटा पार्ट वगैरह, फिर उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं पब्लिक रख रहा हूं सिंपलिसिटी के लिए। तो मेरे पास, मैंने कहा एक तो डेटा होगा, और क्या होगा बताएगा मुझे? लिंक। नोड में दो चीजें होंगी, एक तो डेटा है, फर्ज कीजिए इसका नाम हम नेक्स्ट रखते हैं, अक्सर बुक्स में इसको नेक्स्ट रखते हैं बिकॉज इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। एंड दिस नेक्स्ट, अगर मैं ये नेक्स्ट कहूंगा, it will be firstly a pointer, right? It has to be a pointer, that's why I'm putting asterisk in front. It has to be a pointer. Why it is a pointer, Priyanjun? क्योंकि जब किसी को एड्रेस स्टोर करना है, it can be a pointer. जैसे ये डेटा है, इस डेटा में नॉर्मल वेरिएबल जा सकते हैं 2, 4, whatever you want to take. लेकिन अगर आप इस डेटा में किसी चीज का एड्रेस डालना चाहते हो, then this data has to be of type pointer, and pointer we show using the asterisk.
इस नेक्स्ट में क्या होना चाहिए पीरंजुम? एड्रेस ऑफ, आपकी Address माइक of- बंद है ना? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। इस नेक्स्ट में एड्रेस जो, यानी कि आपको एक नोड ये है, फिर दूसरा नोड जब आप क्रिएट करोगे इसका एड्रेस यहां पे होगा। ये किधर भी हो सकता है मेमोरी में, वी डोंट केयर, लेकिन उसका जो भी एड्रेस है वो कहां पे होगा? यहां पे। ठीक है, अब यहां पे जो आपका है ये डेटा पार्ट है, ठीक है, और ये नेक्स्ट, इस नोड का भी अपना डेटा पार्ट होगा और इसमें ये नेक्स्ट। सो ये जो नेक्स्ट है इट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। और वो नोड किस किस्म का होगा? जिस किस्म का ये अपना नोड था, है ना? सो व्हाट विल बी द डेटा टाइप देन? कैन यू टेल मी व्हाट इज डेटा टाइप? int, Class node, node. नोड एस्ट्रिक्ट। भाई node. किसी का पॉइंटर होगा ना जो खुद ही है, जो ये खुद नोड है, ये खुद नोड ऑफ टाइप क्लास है। डेटा टाइप इस पॉइंटर का डेटा टाइप भी वही होगा जो ये नोड जिसका बना है, नोड बना है ऑफ टाइप क्लास। सो नोड एस्ट्रिक्ट नेक्स्ट, दैट मींस दिस नेक्स्ट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ टाइप नोड, जिसमें खुद जो दूसरा नोड होगा उसमें भी यही दो चीजें होंगी, डेटा और पॉइंटर लिंक। डज इट मेक सेंस सर? Now I am creating a constructor. Okay, I'm creating what? Constructor to initialize this data, to initialize this. So that means whenever I create an object, I will send data to it. So that means I am putting up int, say for example value in this method, and मैं इस data के अंदर, ये data है, उसमें ये value डाल रहा हूँ। We will do it practically, मैं आज दिखा रहा हूँ ऐसे, लेकिन करेंगे हम कंपाइलर पे, ठीक है? और इसमें क्या जाना चाहिए? इसमें नोड में क्या जाना, क्योंकि फिलहाल तो कुछ भी नहीं होगा, फिलहाल मैं पहला नोड क्रिएट कर रहा हूं। इसमें डेटा जा रहा है, डेटा फर्ज कीजिए आपके पास से आपने 20 डाला, ये 22 डाला, वो इधर है। इसमें क्या जाना चाहिए? इसमें व्हाट शुड बी इन द लिंक पार्ट? Address of next node, but हमने एक ही बनाया है इस time. एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड तो भी है ही नहीं, अभी तो मैं यही बना रहा हूँ ना। सो व्हाट शुड बी Null. हियर? वेरी गुड, Null. so it should be null for Null. first. Yes, mashallah, now you are working with me. Now this should be null because right now I don't have next node. जब next node बनेगा तब जाके उसका एड्रेस डालूंगा यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए कि मैं क्या डालूंगा इसमें? null. अभी के लिए क्या डालूंगा इसमें? null. So I will say into the next, what should I drop in? And u n. ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई सर? Yes, sir. ओके, सो ये कुल मिला के मेरा नोड होगा। जब भी मुझे नोड क्रिएट करना होगा, आई विल क्रिएट अ नोड ऑफ टाइप दिस। सो नोड जब भी मुझे क्रिएट करना होगा, आई विल क्रिएट ऑफ टाइप दिस। हाउ, व्हाट विल आई डू दिस? आई विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ओके, मैं रब करता हूं इसको यहां से। सो व्हेनेवर आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, समझ आ रहा है? मैं बड़ा स्लो जा रहा हूं अभी और एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज आई नो योर कॉन्सेप्ट्स आर ऑलरेडी वीक। तो डेटा स्ट्रक्चर आपने खा की पढ़ी होगी, वो तो मुझे पता ही है, इसलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब भी मुझे नोड बनाना होगा, हाउ आई क्रिएट अ नोड? आई विल क्रिएट जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नोड। आई से नोड n इक्वल्स टू न्यू, सॉरी ये पेरेंथेसिस नहीं है, नोड and send some data. Say I send some data to, basically I will maybe I send d. तो इससे पहले कि मैं नोड क्रिएट करूंगा, I will ask the user कि आप डेटा एंटर करो, वो d में डालो, और वो d में भेजूंगा इसको, वैल्यू को। तो देखिए आप होगा क्या, जब यूं ही आपको नोड क्रिएट करना होगा, आप करोगे ऐसे, ऑफ टाइप नोड, इस नोड का बनाओगे वेरिएबल n, रेफरेंस वेरिएबल n इज इक्वल न्यू, तो बन गया एक न्यू से बनेगा न्यू ऑब्जेक्ट, और कंस्ट्रक्टर कॉल होगी, इस कंस्ट्रक्टर कॉल होगी, और जब ये ऑब्जेक्ट बना उसमें दो चीजें होंगी, एक तो डेटा पार्ट होगा और एक तो वो नेक्स्ट लिंक पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें यहाँ पर है, एक तो डेटा है और लिंक है। ये दो मेरा डेटा है ना, इसमें दो चीजें इसकी किसकी? इस नोड की। ठीक है, और जो डेटा पार्ट है उसमें जो आप डी में डाला आपने,
वो डी गया इस वैल्यू के पास, क्योंकि नोड को कॉल हो गई, ये नोड कॉल हो गई इस मेथड को, कंस्ट्रक्टर को, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल हो गई। अब इसमें वैल्यू डी था, वो गया इस वैल्यू के अंदर, और वो वैल्यू कहाँ पे डाला आपने, इसके डेटा पार्ट में। तो डेटा पार्ट में वो डी गया, जो भी डी, फर्ज कीजिए डी में आपने डाला था 22, वो 22 गया डेटा पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में क्या जाएगा, नल, तो इस पार्ट में नल होगा। तो इस तरीके से मुझे पहला नोड बनेगा, इसमें यहाँ पे 22 होगा और लिंक पार्ट में नल होगा, है ना। अब जब नेक्स्ट नोड बनेगा, नेक्स्ट नोड किधर बनना चाहिए, इधर को बनना चाहिए ना। तो नेक्स्ट नोड इस तरह से बनना चाहिए, बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, सो लेट मी टेक वन स्क्रीनशॉट। ये ताबिर भट्ट को कैमरा खुला हुआ, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट उबैद अमीन कैमरा खुला। ये ताबिर भट्ट है भी कोई स्टूडेंट है नहीं, इसने आज ही रिक्वेस्ट भेजी थी, युकुस ताबिर भट्ट, इसकी आज मैंने रिक्वेस्ट देखी, इसमें इच्छा सोन स्टूडेंट के आउटसाइडर का 21. ये तो कैमरा भी नहीं खोल रहा, आई हैव टू रिमूव इट, FN प्रिंट स्क्रीन। फिलहाल आपने ये समझा ये बात, कोई बात नहीं, एक पहले लेक्चर को अगर 2-3 दिन भी लगते हैं कोई मसला नहीं, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ब्रेन के अंदर। सो 1 ही मिनट है, लेस देन 1 मिनट हो गया अभी। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जनाब इसको वीडियो